अभी हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एनसीईआरटी क्लास 11th इंट्रोडक्शन. In chapter 6 we studied the rotation of the bodies and then realized that motion of a body depends on how mass is distributed within the body. We restrict ourselves to simple situation of rigid bodies. A rigid body generally means a hard solid object having a definite shape and size. But in reality, bodies can be stretched, compressed, and bent. Even the appreciable rigid steel bar can be deformed when a sufficiently large external force is applied on it. This means that solid bodies are not perfectly rigid. इसमें क्या है, ये बता रहा है कि जैसे 6 चैप्टर किया था हमने रोटेशन वाला, उसमें आपको क्या बताया जाता है कि कोई भी बॉडी है उसके अंदर मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, वो ऐसे फिक्स रहता है. बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस कोई भी बॉडी ऐसे फिक्स नहीं रहती है. उसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी लेंथ में, उसकी ब्रेथ में, इन सब चीज़ों में चेंज आ जाता है. बस किसी का भी ऐसा कोई फिक्स शेप है अगर, उसको चेंज किया जा सकता है. A solid has a definite shape and size. In order to change the shape or size of a body, a force is required. If you stretch a helical spring by gently pulling its end, the length of spring increases slightly. When you leave the end of the spring, it regains the original size and shape. The property of a body by virtue of which it tends to regain its original size and shape when the applied force is removed is known as elasticity. जैसे कि एक स्प्रिंग है, उसको हमने नीचे से खींच लिया तो वो क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा, लंबा हो जाएगा. छोड़ देंगे तो वापस वहीं पे चला जाएगा. तो वही क्या है कि वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक बॉडी रीगेन कर लेती है अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को, उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी. एंड डिफॉर्मेशन कोज दिस नॉन एज इलास्टिक डिफॉर्मेशन. और उसकी अंदर जो चेंज आ गया है उसको बोलते हैं हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन. जैसे कि एक रबर बैंड को हम यूज़ करते हैं, कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं, तो टाइम के साथ वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है. तो वो उसके अंदर क्या आ गया, डिफॉर्मेशन आ गया. और हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो उस पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. बस इतनी सी बात है. ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन करने की जो कैपेसिटी है फोर्स हटाने के बाद, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी. और डिफॉर्मेशन कोज हुई है उसको बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन. हाउएवर इफ यू अप्लाई टू अ लंप ऑफ mud, they have no gross tendency to regain their shape. They got permanently deformed. Such substances are called plastic and this property is called plasticity. और वो सब सब्सटेंस जिसके ऊपर आपने फोर्स लगाया उनकी शेप डिफॉर्म होगी और वो वापस से अपनी शेप को रीगेन नहीं कर सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक. और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी. देखो, फोर्स रिमूव करने के बाद जो अपनी शेप को रीगेन कर ले वो हो जाएंगे इलास्टिक प्रॉपर्टी, हो जाएगी इलास्टिसिटी. और जो उसमें चेंज आया है थोड़ा बहुत वो हो जाएगा इलास्टिक डिफॉर्मेशन. इसी तरह प्लास्टिक क्या हो जाएगा, जिसके अंदर शेप में जो कम्प्लीटली ब्रेक हो जाए, मतलब वो रीगेन ना कर पाए, वो हो जाएगा प्लास्टिक. और प्रॉपर्टी हो जाएगी प्लास्टिसिटी. The elastic behavior of material plays an important role in engineering designing. For example, while designing a building, knowledge of elastic properties of material like steel, concrete, etc. is essential. The same is true in the design of the bridge, automobile, rope, etc. One could also ask, can we design an aeroplane which is very light but sufficiently strong? Can we design an artificial limb which is lighter but stronger? Why does a railway track have a particular shape like eye? Why is glass brittle while brass is not? Answer to such question begin with the study of how relatively simple kind of load or force act to deform different solid bodies. In this chapter, we shall study elastic behavior and mechanical property of solid, which would answer many such questions. Stress and strain. When a force are applied on a body in such a manner that the body is still in static equilibrium, it is deformed to a small or large extent depending upon the nature of the material of the body and magnitude of the deforming force. The deformation may not be noticeable visually in many material, but it is there. When a body is subjected to a deforming force, a restoring force is developed in the body. The restoring force is equal in magnitude but opposite in direction to the applied force. The restoring force per unit area is known as stress. देखो, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं उसकी शेप को चेंज करने के लिए, वो होता है डिफॉर्मिंग फोर्स. ठीक है. और जब वो बॉडी उस फोर्स को हटाने के बाद अपनी शेप को वापस रीगेन करती है, ठीक है, तो जो वो खुद फोर्स लगाती है उसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स. द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस. उसको बोलते हैं स्ट्रेस. इफ एफ इज द फोर्स अप्लाइड नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया. The SI unit of stress is Newton per meter square or Pascal and its dimensional formula is m l minus 1 t minus 2. निकाल लेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया से, फोर्स के लगा देंगे आप m l t minus 2 और बाय में एरिया का हो जाएगा L2.
तो क्या बन जाएगा ml-1 t-2. There are three ways in which a solid may change its dimension when an external force is applied on it. These are shown in the figure 8.1. देखो ऐसे आपको तीन फिगर दिए हुए हैं कैसे कैसे आप एक सॉलिड के अंदर शेप के चेंज कर सकते हैं. सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है कोई भी एल लेंथ है उसको हमने खींच दिया, उसके अंदर क्या आ जाएगा इलोंगेशन आ जाएगा. उसको हमने टिल्ट कर दिया है ना, उसमें क्या आ जाएगा शेयर आ जाएगा. शेयरिंग स्ट्रेस है बी और सी में, और डी में हमारे पास कोई भी एक वॉल्यूम दिया हुआ है उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है वो है. देखते हैं क्या लिखा है. There are three ways in which a solid may change its dimension when an external force acts on it. These are shown in the figure. A cylinder is stretched by two equal force applied normal to its cross-section area. The restoring force per unit area in this case is called tensile. ठीक है, हमने क्या किया है सिलेंडर को स्ट्रेच किया है. सिलेंडर को अगर स्ट्रेच किया है तो उसकी क्या हो जाएगी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. अगर हमने उसको स्ट्रेच किया है तो उसमें क्या हो जाएगा लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. उसको इसने क्या नाम दिया है tensile stress. If the cylinder is compressed under the action of the applied force, the restoring force per unit area is known as compressive. अब हमने क्या कर दिया उसको कंप्रेस कर दिया तो उसको हमने क्या बोल दिया कंप्रेसिव स्ट्रेस. देखो स्ट्रेस क्या है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. आपने उसको लेंथ से इंक्रीज कर दिया, उसने अपनी लेंथ को रीगेन करना चाहा, वो हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस. और अगर आपने उसको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करने के बाद आप छोड़ेंगे तो वो वापस बाहर को जाएगा, तो जो उसका रिस्टोरिंग फोर्स होगा वापस बाहर को जाने वाला वो क्या हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस. बस ये याद रखना है फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आप ले रहे हो तो वो फोर्स होगा रिस्टोरिंग फोर्स. रिस्टोरिंग फोर्स होता है इंटरनल फोर्स ऑफ अ बॉडी, जो हम लगाते हैं वो होता है डिफॉर्मिंग फोर्स. ठीक है, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. टेंसाइल क्या है जो लंबा होने मतलब जो आपने उसको लंबा किया है खींच के उसको नेग्लेक्ट करने वाला नलीफाई करने वाला, और कंप्रेसिव क्या है आपने उसको कंप्रेस कर दिया उसको नलीफाई करने वाला. दोनों को हम एक टर्म में यूज़ कर सकते हैं. वो अपने पास क्या है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यानी लेंथ से रिलेटेड है. वो बढ़ रहा है उसके लेंथ या कम हो रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी उसका रिस्टोरिंग फोर्स है वही क्या हो जाएगा स्ट्रेस हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग. अब देखो इन बोथ द केसेस देयर इज चेंज इन द लेंथ ऑफ द सिलेंडर. द चेंज इन द लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन. ठीक है, देखो स्ट्रेस भी आ गया अपने पास और स्ट्रेन भी आ गया. स्ट्रेस आपको क्या बोल रहा है, स्ट्रेस आपको बोल रहा है कितना रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है वो अपना क्या है स्ट्रेस है. और इसी तरह चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ वो अपने पास क्या है स्ट्रेन है, यानी कि उसकी लेंथ में कितना चेंज आया और पहले उसकी लेंथ क्या थी. ठीक है, पर यूनिट उसकी ओरिजिनल लेंथ कितना उसके अंदर चेंज आया है वो हमारा क्या हो जाएगा स्ट्रेन हो जाएगा. longitudinal strain हो गया delta L by L. However, if two equal and opposite deforming forces are applied parallel to the cross section area of the cylinder, there is relative displacement between the opposite faces of the cylinder. The respective force per unit area developed due to applied tangential force is known as tangential या shearing stress. ठीक है, tangential force जो हमने लगाया है ना, tangential मतलब एक तरह से sideways जो हमने लगा दिया. ये देखो जैसे आपने इस पे लगाया बी फिगर पे, तो आपने क्या किया इसके साइडवेज फोर्स लगा दिया, ये वाला जो फोर्स लगाया तो इसकी वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट होगी है ना. लेंथ और ब्रेथ में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, ना इलोंगेशन हुई है ना कंप्रेशन हुआ है, बट इसमें क्या है वो जैसे पहले सीधा खड़ा था फिर क्या हो गया टिल्ट हो गया, तो उसमें एंगल में चेंज आ गया. तो इसको हमने क्या नाम दिया है, इसको हमने नाम दिया है शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस. टेंजेंशियल फोर्स की वजह से लगा है जो. ठीक है, और ये वाला फोर्स हम लिक्विड्स में तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि उनकी तो कोई वेल डिफाइंड शेप ही नहीं है. तो उसके बाद देखो एज अ रिजल्ट ऑफ अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स देयर इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स बिटवीन अपोजिट फेसेस ऑफ द सिलेंडर. द स्ट्रेन सो प्रोड्यूस इज नॉन एज शेयरिंग स्ट्रेन एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फेसेस टू द लेंथ. जैसे जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था वो कैसे था चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ है ना. अब जो आप बात कर रहे हैं शेयरिंग स्ट्रेन की, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या था अपने पास डेल्टा एल बाई एल चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ. अब हम बात कर रहे हैं शेयरिंग स्ट्रेन की, यानी कि उसके अंदर कितना टिल्ट आया है, कितने वो डिस्प्लेस हो गया है. तो देखो डेल्टा एक्स का टिल्ट आया है तो ये क्या हो जाएगा अपने पास डेल्टा एक्स बाई एल, डेल्टा एक्स बाई एल परपेंडिकुलर बाय बेस किसके बराबर टेंजेंट ऑफ थीटा के. where theta is angular displacement of the cylinder from vertical, usually theta is very small, tangent theta is nearly equal to theta. अगर आपको एंगल के टर्म्स में दिया हुआ है तो डायरेक्ट एंगल ले लो, और डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में दिया हुआ है तो स्ट्रेन हो जाएगा चेंज इन मतलब डिस्प्लेसमेंट delta x by L. Usually theta is very small, tangent theta nearly equal to theta. It can also be visualized when a book is pressed with hand and pushed horizontally.
एक बुक को रख दिया, मोटी बुक को, अपन उसको पुश किया, नीचे से तो वैज इट इज़ रहेगी, ऊपर से थोड़ी सी आगे की तरफ चली जाएगी, वो हो जाएगा डेल्टा एक्स बाय में उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। अ सॉलिड स्फीयर प्लेस इन द फ्लूइड अंडर हाई प्रेशर इज कंप्रेस यूनिफॉर्मली ऑन द ऑल साइड। हमने क्या किया, एक सॉलिड स्फीयर को लिया, उसको हमने कंप्रेस कर दिया हर तरफ से, तो जो फोर्स लगा है, the force applied by the fluid act in perpendicular direction each point of the surface and the body is said to be under hydraulic compression. This led to decrease in its volume without any change of its geometrical shape. इसमें क्या आएगा, वॉल्यूम का चेंज आ जाएगा। अगर हम किसी ऐसे ही लगा लो, एक बलून है, उसके अंदर हमने पानी भर दिया, उसको हम ऊपर से प्रेस कर रहे हैं, वही वाली बात है बस। वॉल्यूम मतलब उसके ज्योमेट्रिकल शेप में चेंज नहीं आएगा अगर हमने उसको किसी कंटेनर में डाल रखा है। The body develop internal restoring force that are equal and opposite to the force applied by the fluid. The body restores its original shape and size when taken out of the fluid. That much simple. The internal restoring force per unit area in this case is known as hydraulic stress. जब अपना लेंथ में चेंज आ रहा था उसको हमने क्या नाम दे दिया था, टेंजेंशियल स्ट्रेस, और अब जब वॉल्यूम में आ रहा है तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। एंड इन मैग्नीट्यूड इक्वल टू द हाइड्रोलिक pressure. Okay, the strain produced by hydraulic pressure is called volume strain and is defined as the ratio of change in volume to the original volume. देखो, तीसरी तरह का है हमारे पास, ये क्या है, स्ट्रेन आया है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा आया था, सबसे पहले आया था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वो क्या था, डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ टू द। उसके बाद हमारे पास आया शेयरिंग स्ट्रेन, वो क्या हुआ था, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डेल्टा एक्स बाई एल। और अब हमारे पास आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और इसी में जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो वाला क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। उसके बाद है हुक्स लॉ। स्ट्रेन एंड स्ट्रेस टेक डिफरेंट फॉर्म इन द सिचुएशन डिपिक्टेड इन द फिगर दिस फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दिस इज नॉन एज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बोलता है कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है कितना चेंज इन लेंथ या चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है पर यूनिट लेंथ या वॉल्यूम, ठीक है। मतलब फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग ही उसकी चेंज है, एक तरह से प्रोपोर्शन में बढ़ती हैं चीज़ें। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू के टाइम ऑफ स्ट्रेन, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दिया, और के क्या है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम आगे पढ़ेंगे। Hooke's law is an empirical law and is found to be valid for most of the material. ये हमारे पास एक ऐसा लॉ है जो सारे most of the materials के लिए valid हो। However, there are some material which do not exhibit this linear relationship. उसके बाद है stress strain curve. Hooke's law ने तो क्या बोल दिया कि stress और proportional होता है strain के, यानी कि बट इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, एक लिमिट तक ये चीज़ वैलिड होती है, उसके बाद नहीं होती। चलो पढ़ते हैं तभी समझ में आएगा। द रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन फॉर अ गिवन मटेरियल अंडर टेंसाइल स्ट्रेंथ कैन बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली। टेंसाइल स्ट्रेंथ कौन सा, लेंथ वाला। In a standard test of tensile properties, a test cylinder or a wire is stretched by applied force. The fractional change in length and the applied force needed to cause the strain are recorded. The applied force is gradually increased in steps and the change in length is noted. A graph is plotted between the stress, which is equal in magnitude to the applied force per unit area, and the strain produced. A typical graph for a metal is shown. हमने क्या माना है कि जितना हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं ना, उतना ही उसके अंदर से क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स को ही लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे। Shear stress may also be obtained. The stress strain curve vary from material to material. These curve help us to understand how a given material deform with increasing load. From the graph we can see that in the region from O to A, the curve is linear. In this region, Hooke's law is obeyed. The body regain its original dimension when the applied force is removed. In this region, the solid behave as elastic body. तो देखो हमने क्या किया, स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व बनाया। हमने वाई एक्सिस पे तो ले लिया है स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, स्ट्रेन लिया है, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर क्या है हमारे पास, जब आप जीरो से एक बात करेंगे तो जब आप जीरो से ए या ओ से ए लगा लो तो क्या है, देखो एकदम ही प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन जा रही है ना स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में, और ए पॉइंट क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी यहाँ तक दोनों क्या रहेंगे, हुक्स लॉ को ओबे करेंगे। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, स्ट्रेन के। In the region from A to B, stress and strain are not proportional. Nevertheless, the body still returns to the original dimension when the load is removed. The point B in the curve is known as yield point. तो देखो हमने क्या किया है, पहले तो प्रोपोर्शनल रह रहे थे, जितना स्ट्रेस बढ़ रहा था, जितना स्ट्रेन हो रहा था, स्ट्रेस हो रहा था, वो प्रोपोर्शनल थे। उसके बाद क्या हुआ,
इतने तक तो प्रोपोर्शनल रहे। उसके बाद जब हम ए से बी में गए तो प्रोपोर्शनल नहीं रहे, बट फोर्स हटाने के बाद बॉडी अपनी शेप को रीगेन कर पा रही है। फॉर एग्जांपल एक रबर बैंड है, अपने रबर बैंड को खींचा, छोड़ दिया, वापस आ गया, वो उतना ही था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, अपन ने खींचा तो उसके अंदर थोड़ा सा वो लूज हो गया, पहले से एकदम नया आता है तो वो टाइट होता है, फिर वो क्या हो गया, थोड़ा सा लूज हो गया। तो अब उस वाले केस में क्या होगा, सबसे पहले जब हम खींच के छोड़ रहे हैं तो वो वापस आ पा रहा है, थोड़ा और लगाएंगे तो वापस तो आ जाएगा, बट प्रोपोर्शनलिटी नहीं रहेगी। जहाँ तक वो वापस आ पा रहा है उसको हमने क्या नाम दे दिया, इल्ड पॉइंट, इलास्टिक पॉइंट। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज नोन एज इल्ड स्ट्रेंथ। इल्ड पॉइंट है ना, वो हमारी क्या है, इलास्टिक लिमिट है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस की वैल्यू है उसको हमने क्या नाम दे दिया, इल्ड स्ट्रेंथ, सिग्मा वाई, ठीक है। जो आपको स्ट्रेस वाली साइड दिखाया हुआ है सिग्मा वाई, ये क्या है अपने पास, इल्ड स्ट्रेंथ है। If the load is increased further, the stress developed exceeded the yield strength and strain increases rapidly even for a small change in the stress. हमने उसके बाद क्या हो जाएगा, yield strength के बाद हमने थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ा दिया, उसके लिए जो बॉडी है उसके अंदर चेंज ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। ये देखो स्ट्रेस की वैल्यू तो थोड़ी सी बढ़ी है सी से लेके डी तक, लेकिन जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई, देखो कितना ज़्यादा एरिया कवर कर लिया अगर हम ग्राफ पे चेक करें तो, वही वाली बात है बस, ठीक है। तो जहाँ तक वो प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है वो प्रोपोर्शनल लिमिट है। उसके बाद जहाँ प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहा बट शेप को रीगेन कर रहा है वो क्या है अपने पास, इल्ड पॉइंट है। उसके बाद देखो, इट डेवलप इंक्रीज द डेवलप or increase the yield strength and strain increases rapidly even for small changes. The portion of the curve between B and D shows this. When the load is removed, say at some point C between B and D, the body does not regain its original dimension. In this case, even when stress is zero, the strain is not zero. The material is said to have permanent set. यानी कि हमने उसके ऊपर से फोर्स तो हटा दिया बट बॉडी ने अपना शेप जो है वो रीगेन नहीं किया, उसके अंदर परमानेंट सेट आ गया। जैसे एक रबर बैंड को आप रिपीटेडली यूज़ करते हैं, ठीक है, तो एक टाइम के बाद क्या होता है, वो लूज़ हो जाता है, लूज़ होने के बाद वो उसका क्या आ गया, परमानेंट सेट आ गया, मतलब उससे वो कंप्रेस नहीं हो सकता, उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गई, वही इसका क्या है, परमानेंट सेट है। इल्ड पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है, इल्ड पॉइंट देखो ए क्या है अपने पास, प्रोपोर्शनल लिमिट है, वहाँ तक प्रोपोर्शन में रहेगा। बी तक क्या है, वो अपनी शेप को रीगेन कर पा रहा है भले ही प्रोपोर्शन में नहीं है। सी पे जाके वो शेप को रीगेन नहीं कर पाएगा, वहाँ पे उसके अंदर क्या आ जाएगी, डिफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो, द मेटल इज सेड टू हैव परमानेंट सेट, द डिफॉर्मेशन इज सेड टू बी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। द पॉइंट डी ऑन द ग्राफ इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। मतलब यहाँ पे जाके ये इसकी क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। Beyond this point, additional strain is produced even by a reduced applied force and fracture occur at the point E. E पे जाके तो वो टूट ही जाएगा। अब किसी चीज़ पे आप फोर्स लगा रहे हैं, एक स्केल है, एक पेंसिल है, जो भी एक टाइम पे क्या आता है वो टूट जाता है, वो उसका क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट है। और डी ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जाके उसके अंदर क्या आ जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। If the ultimate strength and fracture point are close, the material is said to be brittle. If they are far apart, the material is said to be ductile. D और E अगर पास पास में है तो इसका मतलब क्या है, जो मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर में बहुत कम डिफरेंस है। मटेरियल कैसा है, ब्रिटल है। डक्टाइल कौन से होते हैं, जिनको आप थिन वायर्स में चेंज कर सकते हैं, जिनकी वायर्स बना सकते हैं। तो जो वायर्स हैं वो क्या करती हैं, उनके स्ट्रेंथ से कहीं ज़्यादा भी आप उनको खींच देंगे ना तो वो इजीली ब्रेक नहीं होगी, उनका फ्रैक्चर इतनी जल्दी नहीं आता। फ्रैक्चर पॉइंट इज़ लाइक टूट जाना, उसके बाद तो कोई स्कोप ही नहीं बचता किसी चीज़ का, ठीक है। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ और ई यानी कि फ्रैक्चर पॉइंट, ये अगर पास पास में है तो क्या हो जाएगा, ब्रिटल, ये अगर दूर दूर है तो क्या हो जाएगा, डक्टाइल। ऐसे लर्न कर लो, ये तो समझने की बात है। वैसे क्रैम करने के लिए कैसे करेंगे, ए बी सी डी, बी पहले आता है तो जो पास पास में है वो बी पे आ जाएगा, ए से लेके डी तक जाओ, वो डी दूर आ रहा है तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, डी से डक्टाइल हो जाएगा। या ऐसे कर लो, डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो डक्टाइल है और कम है तो वो क्या है, ब्रिटल है, ठीक है। ये कर्व दी हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग कर्व है ये, पता है किस चीज़ की है, ये है हार्ट के अंदर जो ऑर्टा प्रेजेंट होती है उनकी। नॉट दैट द ऑल्दो elastic region is very large, the material does not obey Hooke law over most of the region. Secondly, there is no well defined plastic region. Substance like tissue of aorta, rubber, etc., which can be stretched
टू कोज लार्ज स्ट्रेन आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। जिनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ सकता है, ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं इलास्टोमर्स। यानी कि फोर्स अप्लाई करने पे पर यूनिट लेंथ इनके अंदर बहुत ज़्यादा इलोंगेशन आ जाता है, वो हमारे होते हैं इलास्टोमर्स। अब देखो इलास्टिक मॉड्यूलाई, द प्रोपोर्शनल रीजन विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर स्ट्रक्चरल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग डिजाइन। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो हमने यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट पढ़ा था ना कि, तो बस यही है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, एक पर्टिकुलर स्ट्रेस पे कितना स्ट्रेन उसके अंदर आता है, वही अपना क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और उसी को हमने क्या नाम दे दिया, इलास्टिक मॉड्यूलाई। ठीक है, यंग्स मॉडुलस। अब देखो हमने कई तरह के स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़े हैं, टेंजेंशियल, कंप्रेशन वाला है, शियर वाला है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या डिफाइन किया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन की है। देखो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन शोज दैट फॉर अ गिवन मटेरियल द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेन प्रोड्यूस इज सेम वेदर द स्ट्रेस इज टेंसाइल और कंप्रेसिव। मतलब या तो हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं लेंथ को या डिक्रीज कर रहे हैं लेंथ को। टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा हमारे पास, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेन, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा स्ट्रेन आता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बस आपको यही देखना है कौन से फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग उसके अंदर कौन सा चेंज आ रहा है, प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी लेंथ में चेंज आ रहा है, बस यही सब देखना है और क्या ही है। तो देखो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, दोनों को डिवाइड कर दो, क्या बन गया, आ गया। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, डायमेंशनलेस। और जो अपने पास स्ट्रेस होता है वो क्या आता है, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही किसके होते हैं, प्रेशर के, वो क्या होता है अपने पास, पास्कल में। बस तो यही मॉडुलस के भी अपने पास डायमेंशंस आ जाएंगे। द वैल्यू ऑफ यंग मॉड्यूलाई एंड यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ सम मटेरियल फ्रॉम द डेटा आर दिस। यहाँ पे कुछ मटेरियल्स के दिए हुए हैं, डेंसिटी कितनी है, यंग्स मॉडुलस, अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड पॉइंट वगैरह, बट आपको न्यूमेरिकल करने दिया जाएगा तो इनकी वैल्यूज गिवन होंगी। Therefore, this material require a large force to produce small change in the length. To increase the length of a very thin steel wire of 0.1 centimeter square, cross section area by 0.1, a force of 2000 Newton is required. The force required to produce the same strain in aluminium, brass and copper are different. It means that steel is more elastic than copper. देखो एक पर्टिकुलर पीस ले लिया हमने स्टील का, उसको डिफॉर्म करने के लिए जो आपको फोर्स चाहिए, कॉपर को करने के लिए जो चाहिए और इलास्टिक को करने के लिए चाहिए, वो सबकी वैल्यू अलग अलग है। तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग उनकी क्या है, हम इलास्टिसिटी डिफाइन कर देते हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है, अपनी शेप को रीगेन कर पा रहे हैं। तो स्टील बहुत ज़्यादा वैल्यू के फोर्स तक भी अपनी शेप को रीगेन कर ले रहा है, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, स्टील को यूज़ करते हैं कोई भी मशीन्स बनाने के लिए। ठीक है उसके बाद एक क्वेश्चन देखो, अ स्ट्रक्चर steel rod has a radius of 10 mm and length of 1 meter. 100 kilonewton force stretch it along its length. यहाँ पे आपको निकालना है स्ट्रेस, इलोंगेशन एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस कैसे निकलेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो देखो फोर्स कितना दिया हुआ है, 100 किलो न्यूटन, फोर्स आ गया। उसके बाद एरिया क्या है, रोड है, एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बस वैल्यूज पुट कर दो, 100 किलो न्यूटन 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और एरिया पाई की वैल्यू 3.14। रेडियस कितना हो जाएगा इसका, रेडियस 10 mm दिया हुआ है, तो 10⁻² m का स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद हमें निकालनी है इलोंगेशन यानी कि डेल्टा एल। हमने अभी अभी क्या फॉर्मूला पढ़ा था, y की वैल्यू क्या होती है अपने पास, y की वैल्यू अपने पास होती है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, फोर्स पर यूनिट एरिया, और डेल्टा एल बाय एल। तो डेल्टा एल को उस तरफ ले जाओ, y नीचे आ जाएगा, F बाई ए एल बाय वाई। तो देखो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ गई, फोर्स पर यूनिट एरिया, वो पुट कर दी। और उसके बाद यंग मॉडुलस की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 2.0 इंटू 10⁻11, ये वाली वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। तो दोनों वैल्यू पुट कर दी तो अपने पास क्या आ जाएगा, इलोंगेशन आ जाएगा। और आपको क्या निकालना है इसके अंदर, कितना स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना आ गया, 1.59 mm, और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, 1 mm। दोनों को डिवाइड कर दो, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएंगी सारी की सारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रेन कितने परसेंट है वो आ जाएगा। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर एंड अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.6 मीटर, बोथ ऑफ डायमीटर 3 आर कनेक्टेड एंड टू एंड। When stretched by a load, the net elongation is found to be 0.70 mm, यानी कि नेट इलोंगेशन बोल रहा है, जो डेल्टा एल की वैल्यू आएगी अपने पास वो कितनी आ जाएगी, डेल्टा एल जो आएगा किसका, कॉपर का, और डेल्टा एल जो आएगा अपने पास स्टील का, उन दोनों की कंबाइंड वैल्यू अपने पास आ रही है 0.70 mm। ठीक है, दोनों की लेंथ और वो दिया, आपको निकालना है लोड, लोड निकालना है यानी कि आपको ये देखना है कि कितना उसके ऊपर फोर्स था। बस लगा दो फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, जो अपने पास है, y इज इक्वल टू एफ बाई ए डेल्टा एल बाय एल। किसी एक के लिए सोल्व कर लो, कॉपर के लिए सोल्व कर देंगे, ये सारी वैल्यूज़ कॉपर की पुट कर दोगे, यहाँ से आपको लोड निकालना है यानी कि ये वाला फोर्स निकालना है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। वाई ऑफ कॉपर को यूज़ करो, उससे पहले डेल्टा एल कॉपर का निकालो, ओरिजिनल लेंथ तो आपको दी ही हुई है 2.2, और एरिया भी निकाल देंगे पाई आर स्क्वायर करके, कितना रेडियस दिया हुआ है कॉपर वायर का वो भी निकालना पड़ेगा आपको सोल्व करके। Let's see how they do it. Copper and steel wire under the tensile stress because they have same tension equal to the log W and the same area of cross section. ठीक है, we have stress that is strain into Young's modulus. Stress क्या हो जाएगा, टेंसाइल फोर्स पर यूनिट एरिया, यंग्स मॉडुलस वाई सी। सी से जो यूज़ किया है सबस्क्रिप्ट ये कॉपर के लिए है, और एस वाला यूज़ किया है ये उसके लिए, क्या बोलते हैं, स्टील के लिए। दोनों के ऊपर सेम फोर्स है तो अपन ने क्या कर दिया, इनका स्ट्रेस सेम ले लिया, पर यूनिट एरिया सेम फोर्स लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओए ओए ओए, दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इनको हम डिवाइड करेंगे, डेल्टा एल सी बाई डेल्टा एल एस किसके बराबर आ जाएगा, वाई एस बाई वाई सी, एल एस बाय एल सी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद अपने पास ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था, टोटल इलोंगेशन 7 दी हुई थी, डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल एस, तो ये दी हुई थी आपको 7। अब यहाँ पे देखो ए बाई बी लगा लो, डेल्टा एल बाई डेल्टा एस को, इसकी वैल्यू आ रही है 2.5, और इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो यहाँ से डेल्टा एल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, डेल्टा एल सी कैसे निकालोगे बताओ, बहुत ही इजी है इसको निकालना। अपने पास डेल्टा एल सी बाय में डेल्टा एल एस है, तो डेल्टा एल की जगह, डेल्टा एल सी की जगह 2.5 डेल्टा एल एस लिख दो, डेल्टा एल सी की जगह 2.5 इंटू एल सी, और प्लस में डेल्टा एल सी कितना आ जाएगा 7, कितना हो जाएगा ये 2.1 और 1 3.5 डेल्टा एल सी किसके बराबर आ जाएगा 7 के। तो डेल्टा एल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 दूनी 70, 2 एल क्या पुट कर रहे थे, एल सी को पुट किया ना एस के टर्म्स में, हाँ जी सॉरी, सी को पुट किया एस के टर्म्स में, तो डेल्टा एल एस कितना आ जाएगा 2, कितना था टोटल 7, 7 में से 2 ये चला गया तो सी कितना आ जाएगा 5, सी आ गया 5, एस आ गया 2। सी के लिए लोड निकाल दो, सबका सेम आ जाएगा। बस देखो यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, डब्ल्यू निकाल दिया, डब्ल्यू कैसे निकालोगे, वही ये वाला फॉर्मूला, स्ट्रेस ये वाले में पुट कर दो बस। तो एरिया पाई आर स्क्वायर 1.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू होती है ये 1.1 इंटू 10⁻11, डेल्टा एल सी कितना आ गया अपने पास 5, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ जो कितनी दी हुई थी 2.2, ये रही। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये देखो, इन अ ह्यूमन पिरामिड इन अ सर्कस द एंटायर वेट ऑफ द बैलेंस ग्रुप इज सपोर्टेड बाय द लेग्स ऑफ द परफॉर्मर। ये एक ह्यूमन पिरामिड बनाए हैं जिसमें ये परफॉर्म कर रहे हैं, सबसे नीचे जो बंदा है वो क्या है, यहाँ पे ऐसे लेटा हुआ है, ठीक है, इसके पैरों पे सारा वेट है, इसके ऊपर इन लोगों का वेट है प्लस इसका भी वेट है। इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच ईच थाई बोन गेट्स कंप्रेस। इसकी जो थाई बोन्स है उसके ऊपर
कितना ज़्यादा कंप्रेशन आ रहा है वो निकालना है। तो सोचो कैसे निकालोगे। आप क्या करेंगे, ये देख लेंगे इस पूरे का वेट कितना है, ये देखेंगे इस इंसान का वेट कितना है, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, वही इस पे क्या आ जाएगा, लोड आ जाएगा। देखो यहाँ पे 280 केजी तो ये बंदे हैं, और 60 का ये बेंच है, 60 का ये इंसान खुद है। तो बस इनका डिफरेंस ले लेंगे और कंप्रेशन निकाल देंगे। कंप्रेशन यानी डेल्टा एल निकालना है। डेल्टा एल कैसे निकालोगे, ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू यंग मॉडुलस, और स्ट्रेन निकालना है तो स्ट्रेस बाय में यंग मॉडुलस इनटू में ओरिजिनल लेंथ कर देंगे। देखो टोटल मास ऑफ ऑल द परफॉर्मर्स इंक्लूडिंग टेबल कितना आ रहा है अपने पास 280 केजी। जो परफॉर्म कर रहा है सबसे नीचे उसका वेट कितना है 60। तो मास सपोर्ट कितना हो गया 220 केजी, 280 ऊपर था 60 उसका हो गया। तो अब देखो ये तो है मास, आपको देखना है वेट कितना आ रहा है उसके ऊपर, कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो वो कितना हो जाएगा किलो वेट में 9.8 न्यूटन से जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा 2156। टोटल इतना हो गया। अब उसके पास क्या है, दो पैर सपोर्ट करने के लिए, तो एक पाँव पे कितना आ जाएगा, आधा आ जाएगा इसका, ये कितना हो जाएगा 1078 न्यूटन। ठीक है। यंग मॉडुलस ऑफ जो बोन होता है उसकी वैल्यू होती है अपने पास 9.4, टेबल में दी हुई है। उसकी एक थाई बोन की लेंथ है 0.5 और रेडियस है 2। तो यहाँ से उसकी एक थाई बोन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, आपको वही निकालना है ना, फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो देखो फोर्स कितना आ गया एक पे 1078, एक का एरिया कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 2, और इसको सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा एरिया 1.26 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अब निकालना क्या है, कितना कंप्रेशन हुआ है, तो वो कितना आ जाएगा F/Y, क्या होता है अपने पास y इज इक्वल टू F/A डेल्टा एल। डेल्टा एल निकालना है तो ये क्या हो जाएगा FL/AY। देखो FL/AY, F की वैल्यू 1078, L की वैल्यू कितनी लेंथ दी हुई थी 0.5 ये रही थाई बोन की, बाय में y की वैल्यू 9.4 इंटू 10⁻⁹, और a की वैल्यू ये निकाल दी 1.26 इंटू 10⁻³ तो बस यहाँ से ये सारा निकल आएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी कितने परसेंट का चेंज आया है। उसके बाद नेक्स्ट है शेयर मॉडुलस। देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस में अपने पास क्या था, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन था, यंग्स मॉडुलस था अपने पास स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या था फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन क्या था चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ये वाला कब यूज़ करेंगे, जब या तो आप उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं या उसका कंप्रेशन कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब जो शेयर मोड है वो बोलता है एंगुलर चेंज कितना आया है, द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द कॉरस्पॉन्डिंग शेयरिंग स्ट्रेन। देखो वो तो था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये वाला कैसा है अपने पास शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन, यानी कि जितना अपन ऐसे ऊपर से नहीं पुश किया था एक सिलेंडर को, वो डिस्प्लेस हो गया था, बस वही वाला लेके चलना है। तो देखो स्ट्रेस तो कितना आएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन कितना आया था डेल्टा x/L। ले लो आगे बात। सिमिलरली डेल्टा x/L किसके बराबर था, टेंजेंट थीटा के, परपेंडिकुलर बाय बेस वाला दिखाया था जो डायग्राम में। तो बस ये कितना आ जाएगा F/A इंटू थीटा कर लो, यहाँ से स्ट्रेस आ जाएगा G इंटू थीटा स्ट्रेन की टर्म्स में। वही बाकी सेम, वो यंग्स मॉडुलस था, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। यंग्स मॉडुलस बोलेंगे तो आपको टेंसाइल वाला लेना है, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलेंगे तो आपको शेयरिंग वाला लेना है। ये वाला है जैसे जो इसमें दिखाया हुआ है। अ स्क्वायर लेड स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ दी हुई है 50, थिकनेस दी हुई है 10। तो एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, स्क्वायर स्लैब है ना, तो आ जाएगा वो अपने पास सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर दो, 0.5 मीटर स्क्वायर आ गया। अब देखो इसके ऊपर क्या दिया हुआ है, कितना फोर्स लगाया है 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। तो अपने पास स्ट्रेस कितना आ जाएगा, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स 9 इंटू 10⁴, और एरिया कितना आ गया 0.05। यहाँ से स्ट्रेस आ गया। अब आपको क्या निकालना है, द लोअर एज इज राइवेटेड टू द फ्लोर, यानी कि जो लोअर एंड है वो तो फ्लोर पे फिक्स है। हाउ मच विल द अपर एज बी डिस्प्लेस, अपर एज में कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा वो निकालना है। तो देखो कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू जी, आपको निकालना है अपर एज में डिस्प्लेसमेंट, तो वो हो जाएगा स्ट्रेस बाय में मॉडुलस और इनटू में उसकी जो लेंथ है बस। तो देखो स्ट्रेस कितना आया था 1.8 इंटू 10⁻⁶, और इसका मॉडुलस कितना है अपने पास, स्टैंडर्ड मोड यूज़ किया हुआ है 5.6 इंटू 10⁹,
डिवाइड में और इनटू में ओरिजिनल लेंथ कितनी है इसकी 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर। सारी कैलकुलेशन बिठा देंगे, सेट आ जाएगा 0.16 mm। बल्क मॉडल्स करेंगे, उसमें देखो अभी तक तो अपन ने कर लिया, किस में चेंज कर लिया, लेंथ में कर लिया, अपन ने एंगल में चेंज कर लिया। अब आ रहा है वॉल्यूम में चेंज। ये दोनों केस तो अपन ने सॉलिड के लिए किए, अब जो केस है वो किसके लिए, लिक्विड के लिए। We have seen that when a body is submerged in liquid, it undergo hydraulic stress. This lead to decrease in the volume of the body, thus producing a strain called volumetric strain. बस इतना सा है, जो प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग होगा वो वॉल्यूमेट्रिक आ जाएगा, जो लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग होगा वो लॉन्गिट्यूडनल आ जाएगा, जो एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग होगा वो शेयर आ जाएगा। जो एंगल वाला है उसको शेयरिंग बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सॉरी उसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जो लेंथ वाला होता है उसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, और जो वॉल्यूम वाला है इसको हम बोल देंगे बल्क मॉडुलस। इसका कैसे दिखाएंगे आप, -p बाय में डेल्टा v बाई वी। और नेगेटिव साइन दिखाने का क्या मतलब है, अगर हम प्रेशर लगा रहे हैं तो वॉल्यूम में चेंज क्या हो जाएगा, वॉल्यूम है जो डिक्रीज कर जाएगी ज़्यादा प्रेशर लगाने पे। वॉल्यूम डिक्रीज करेगी तो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल कम है इनिशियल ज़्यादा है, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। बस दस फॉर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। फॉर्मूले में नेगेटिव ले लिया तो फिर डेल्टा वी को सोल्व करेंगे वो भी नेगेटिव आ जाएगा, तो एज अ होल बल्क मॉडुलस क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। बस सिंपल। यूनिट्स क्या हो जाएंगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल। और स्ट्रेन क्या होते हैं, यूनिटलेस, वही डायमेंशंस आ जाएंगे, m l-1 t-2। एक चीज़ ध्यान देने की ये है, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाता है, इट इज डिनोटेड बाय के। रेसिप्रोकल कर दो किसका, बल्क मॉडुलस का, यानी कि बल्क मॉडुलस तो क्या है, प्रेशर पर यूनिट चेंज इन वॉल्यूम। बट कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर। पर यूनिट, एक यूनिट एरिया है उस पर प्रेशर इंक्रीज करने से कितना चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी 1/b -1/delta p delta v/v। इट कैन बी सीन फ्रॉम द डेटा इन द टेबल दिस लिक्विड विच आर अगेन लार्जर देन बल्क। टाइम पास। अब ये देखो, ये पढ़ लेते हैं एक साथ। अभी तक आपने जो जो पढ़ा है, सबसे पहला स्ट्रेस था टेंसाइल या कंप्रेसिव। स्ट्रेस कैसे लग रहे थे, दो इक्वल और अपोजिट लग रहे थे परपेंडिकुलर अपोजिट फेस पे, या तो लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। स्ट्रेन कैसा आ रहा था, इलोंगेशन हो रहा था या कंप्रेशन हो रहा था, शेप में चेंज हो रहा था, वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा था। इलास्टिक मॉड्यूलाई फोर्स पर यूनिट एरिया बाय में डेल्टा एल बाई एल। इसका नाम है यंग्स मॉडुलस, और ये किस पे लगाते हैं आप, सॉलिड्स पे। अगर लिक्विड के केस में पूछे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। सेकंड हमने किया शेयरिंग। शेयरिंग में क्या था, वो एंगल का शिफ्ट टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पैरेलल टू अपोजिट सरफेस फोर्स इन ईच केस सच दैट टोटल फोर्स ऑन द टोटल टॉर्क ऑन द बॉडी वैनिश। प्योर शेयर, थीटा स्ट्रेन, चेंज इन शेप यस, चेंज इन वॉल्यूम नो। जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर्स पर यूनिट एरिया बाय में थीटा या फिर डेल्टा एक्स बाय एल। शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और ये होता है सॉलिड के लिए। उसके बाद जब सबसे लास्ट में हमने पढ़ा वो कौन सा है अपने पास, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, फोर्स परपेंडिकुलर एवरीवेयर टू द सरफेस, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज सेम एवरीवेयर, पास्कल्स लॉ। वॉल्यूम चेंज, कंप्रेशन होगा या इलोंगेशन होगा, डेल्टा वी बाई वी। शेप के अंदर चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा, और इसको हम दिखाएंगे -p बाय में डेल्टा वी बाई वी। कितना प्रेशर का चेंज के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम का कितना चेंज हुआ है, इस तरह से कंसिडर कर लेंगे। इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस, और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों पे एप्लीकेबल होता है।